जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, सीनियर मिस्ट्रेसेस, टीचर्स and all my dear friends. I, Kritika Vaidya, would like to welcome you all for the celebration of our 74th Independence Day. The program starting with music has to be a successful program. With this expectation, I would like to call the music group with a patriotic song to ample your hearts with the sound of patriotism. की मशाल से मशाल को देश के जवान तू जलाएगा। क्रांति की मशाल से मशाल को देश के जवान तू जलाएगा। आंधियों के बीच मुस्कुराएगा। क्रांति की मशाल तू जलाएगा। क्रांति की मशाल से मशाल को देश के जवान तू जलाएगा। लोग जो बड़े निराश हो रहे, मौत की घटाओं में जो सो रहे। लोग जो बड़े निराश हो रहे, मौत की घटाओं में जो सो रहे। घटा के साथ साथ जिंदगी जिंदगी तू भी गुल देश के बजाए जा। आंधियों के बीच मुस्कुराए जा। क्रांति की मशाल तू जलाए जा। क्रांति की मशाल से मशाल को देश के जवान तू जलाए जा। गीत है ये गीत है ये गीत तू भी साधना के गीत गाए जा। आंधियों के बीच मुस्कुराए जा। क्रांति की मशाल तू जलाए जा। क्रांति की मशाल से मशाल को देश के जवान तू जलाए जा। आंधियों के बीच मुस्कुराए जा। क्रांति की मशाल तू जलाए जा। क्रांति की मशाल तू जलाए जा। क्रांति की मशाल तू जलाए जा। Wow, I guess what they say is true. The strains of music come straight from the heart of God. Now, to keep the flame of patriotism burning, I would like to call Head Boy Nilansh Kabra with his speech.
respected principal sir, headmistress ma'am, senior mistress ma'am, teachers, and all my dear friends. A very good morning to all of you. It is my pleasure to address this speech to each and every one of you on this glorious occasion that marks our Independence Day. It has been 74 years since our independence. We have come a long way. We live with the concept of unity in diversity, with diverse languages, cultures, and religion. We have about 725 spoken languages and 18 official ones. We live in harmony with over 8 major religions and celebrate each other's festivals with love. We welcome people from other countries with respect and care. We have not forgotten our traditions and values, and we never let each other forget them either. Regarding the positive changes that we have achieved in these 74 years, we have emerged as one of the largest democracies in the world. We have achieved success in green revolution, telecom industry, and even space technology. Now, we are also an emerging power in IT. Though it has been many years since our independence, let us not forget the great leaders who fought for our freedom. Most importantly, let us remember the way we achieved our freedom. We were the pioneers of non-violent freedom struggle. Non-violence is a concept that has been preached in almost all religions, but we had implemented the same under the leadership of the father of our nation, Mahatma Gandhi. We achieved our freedom assertively without being aggressive. We stand as one of the greatest countries in the world because of our soft yet strong nature. India has been a country that has marked her place in history even thousands of years ago. She has been mentioned and praised in trade journals and historical documents of ancient countries and civilizations. People of India not only had wealth, but they also had good values, open-mindedness, and welcomed anyone who came in for help. These attributes encouraged other civilizations to establish relationships with India. I'm sure that India is considered as one of the greatest countries in the world because of its richness in people, culture, and values. We have the freedom to talk about corruption, anything and perhaps, to take steps against the issues, and most importantly, the freedom of speech. People are the power here. Our current status in the global market is appreciated and envied by many. On this day of independence, let us remember how India has set an example for the entire world by means of its assertive freedom struggle. Most importantly, let us not fret about the things that we don't have. Let us strive to make our country a better and safe place by following the values and principles taught by our great leaders. Let us spread awareness, knowledge, values, and gain wisdom. Let us make this our Independence Day resolution. If each individual of our country follows these basic principles, he would grow. So would his family, his surroundings, and eventually the country. Therefore, let us make a promise on this auspicious Independence Day, and let us make India, our motherland, shine even brighter in the future. Jai Hind, Jai Bharat. Don't you think Nilansh was fantastic with his words? Yes, he was. So let's begin further and hear a beautiful poem by Rabindranath Tagore on patriotism, which will be recited by Ajuni Broka. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the worlds come out from the depth of the truth, where the tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Thank you, Ajuni, for creating the energetic and poetic rhythm. Without further ado, I would like to call our head girl Varnita Singhal with yet another speech to enlighten us about the gravity of this auspicious occasion. लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराया, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ.
सुप्रभात। भारत के 74वें स्वतंत्र दिवस पर हम सभी ज्ञात अज्ञात व अनाम शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्र की मंगल कामना करते हैं कि हम इतनी महंगी आजादी को अक्षुण्ण रखते हुए देश को आपसी सहयोग, भाईचारा और सद्भाव से निरंतर मजबूत करें। अनेक देशभक्त नायकों ने खड़े होकर दुष्ट अंग्रेजों से संघर्ष किया और जनता के अंदर ये विश्वास जगाया कि अगर हम एकजुट होकर आतताइयों का प्रबल विरोध करेंगे तो अवश्य स्वतंत्र होंगे। उनके कठिन प्रयासों की वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं, आज हम आजाद हैं और 15 अगस्त 1947 का सूर्योदय भारतीयों के लिए स्वाधीनता का स्वर्णिम सुप्रभात लेकर आया। आज हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता से सांस ले सकते हैं। हमारा अपना राष्ट्रध्वज है, अपना संविधान है, अपनी संसद है। आज भारतीय अपना सिर ऊंचा करके चल सकता है। भारत के लोग अपना स्वतंत्र दिवस काफी उत्साह से मनाते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले में झंडा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लेकिन देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराना नहीं होता, बल्कि देश को मजबूत व सशक्त करने में सहायता करना भी होता है। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सिर हमेशा रखना ऊंचा इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत। That was superb, Vanita. You roamed through the speech. कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. This nazm by Kafi Azmi has always been my favorite. So now let's hear another poem in the same language which is very close to our hearts, that is Hindi, and which will be recited by Anmol Jain. नमस्कार आदरणीय गुरुजन एवं मेरे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन वाकई महान है क्योंकि वह हमें लहू की एक एक बूंद की याद दिलाता है जो हमारे वीर सैनिकों ने और शहीदों ने और क्रांतिकारियों ने हमारे माँ भारती की आजादी के लिए बहाया था। किंतु लहू की वह धार अभी थमी नहीं है। आज भी उस आजादी को बनाए रखने के लिए हमारे वीर सैनिक जी जान लगाकर जुटे हुए हैं। तो आज की मेरी यह कविता उन्हीं वीर सैनिकों की अभिव्यक्ति है। आशा है उनकी तीव्र संवेदनाएं आपके हृदय को जरूर छुएंगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, बस कभी जिक्र हो शहीदों का तो काश उसमें मेरा भी नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो उसको मेरी यह पहचान देना, उठाना मेरा कमांडो ड्रैगन और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि ये पागल था कौन तो क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का नाम लिख देना, इनकलाब का नाम लिख देना। और जो बचा हो लहू इस जिस्म में उसे निकालना और इस जमीन पर माँ तुझे सलाम लिख देना। उसका ये स्वप्न पूरा हो जाता है। फौज से उसके लिए खत आता है। अब सीमा पर उसको जाना है और दुश्मनों से डटकर लड़कर आना है। चलेंगी सांसें जब तक उनको यह मंजर दिखाना है। अब या तो तिरंगा लहराना है या उससे लिपट कर ही घर आना है, उससे लिपट कर ही घर आना है। वह सीमा पर जाता है, लड़ता है, डट कर लड़ता है। उसने हार नहीं मानी और आखिर में तिरंगा लहराकर उसने दे दी अपनी जान की कुर्बानी, दे दी अपनी जान की कुर्बानी। और फिर से सीमा पर एक जवान शहीद हो गया। संवेदनाओं के कितने बीच हो गया और तिरंगे में लिपटी लाश उसके घर आ गई। सिहर उठी हवाएं और उदासी छा गई। तिरंगे में लिपटा खत उसकी माँ को मिल गया। जाते जाते जवान उस खत में लिख गया, बलिदान को आंसुओं से खोना नहीं है, मेरी कसम है तुझे माँ, अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। पगडंडियों के खेतों में तेजी से भागता, अजी सुनने को कहानियां तेरी रातों को जागता। पर माँ ये क्या से क्या हो गया, बिना सुने कहानी तेरा लाल सो गया। भले ही तेरे घर में मुझसा कोई छौना नहीं है, पर कसम है तुझे माँ, अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है।
बहन को कहना अब और याद ना करे, किस्मत को ना कोसे फरियाद ना करे। भाई बनकर अगली बार जरूर आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी भी अपने साथ लाऊंगा। भले ही भाई बहन में मेल अब होना नहीं है, पर कसम है तुझे माँ अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। धन्यवाद। Those words, Anmol, they were so alluring. Great job. Now, moving further, I would like to ask our Honorable Principal Sir to address us all with his words of guidance and support. Please, sir. Good morning, everyone. Wish you all a very happy 74th Independence Day. आपके चेहरे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं अच्छी तरह से, पर जितना मैं देख पा रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं आप मायूस हो रहे हैं। We cannot afford to be certain. जितनी खुशी हमारे चेहरे की होगी उतनी ही खुशी हम बांट सकते हैं। तो सोचना हमें ये है कि अच्छा क्या हो रहा है, ये मत सोचिए क्या अच्छा नहीं हो रहा, सोचिए ये कि अच्छा क्या हो रहा है। क्योंकि हर जो समस्या है उसको देखने का अपना अपना नजरिया है। एक नजरिया ये है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, और दूसरा ये है कि जब चारों तरफ मुश्किलें हो उसको देखो कि अच्छा क्या है। अच्छा ये है कि हम इन सब मुश्किलों के बाद भी मिल पा रहे हैं। ठीक है, दूरी है, दूरी बढ़ाना आवश्यक है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, तो दूरी बढ़ाना भी आवश्यक है। क्योंकि अगर हम थोड़ी दूरी बना के रखेंगे और एक दूसरे को सुरक्षित रख सकते हैं। और आप ये देखें कि आपने इस जो पूरा समय रहा मार्च से लेकर अब तक उसमें क्या क्या पाया, खोया नहीं, क्या क्या पाया। शायद परिवार के लोग इकट्ठे बैठ नहीं पा रहे, तो आपने पाया कि ये समय मिला जब परिवार के लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ रहे हैं। आप शिक्षक हैं, आपने क्या पाया? जिस टेक्नोलॉजी से काफी लोग दूर भागते थे आपने उसको अपना लिया और उसी के माध्यम से सारे काम करते हैं। बच्चे हमारे हैं, ठीक है, बच्चों को बाहर खेलने का मौका कम मिल रहा है, लेकिन बच्चों की भी जो पेरेंट्स है उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को अपनाया, वो भी अपने बच्चों को समय पहले से अधिक दे पा रहे हैं। ऐसी चीजें हैं जिनको हम देखें तो पाएंगे कि काफी कुछ अच्छा हो रहा है। समस्या है, समस्या का निदान, उसका अंत ये विश्वास मान के चले अंत निकट है। इस समस्या में हमने शायद एक और चीज जो पाई है, हाइजीन पे काम हम ज़्यादा कर पा रहे हैं, अपनी साफ सफाई पे, और शायद
इस दौरान अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लोग कम बीमार पड़ेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को दिक्कत हुई है, और आमतौर पर लोग जो है कम बीमार पड़े। उसका कारण ये है कि आप लोग जो भी प्रिकॉशंस हैं वो ले रहे हैं, और उन प्रिकॉशंस को लेने के कारण हम स्वस्थ रह रहे हैं। मैं कुछ ऐसे ही कुछ चीज़ें अभी देख रहा था जो हमारे राष्ट्रपति है, उनका कहना है कि जो ब्रह्म था मनुष्य को, वो सबसे बड़ा है, उसके आगे प्रकृति कुछ नहीं है। तो मनुष्य का कहीं ना कहीं ये ब्रह्म उठा है। ये छोटा सा जो वायरस है वो इतना परेशान नहीं है। और कुछ चीजें हैं देख रहा था कि हमारा कल डिसाइड कैसे होगा, हमारा कल डिसाइड होगा आज क्या करते हैं। तो अगर हम अच्छे विचार रखेंगे, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, तो ये अवश्य है कि कल जो है हमारा बेहतर होगा, उज्जवल होगा। इसी दौरान, इसी समय में आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। सिविकरण जिसने 2015 में यहाँ से पास आउट किया, पहले ही अटेम्प्ट में IAS ना केवल क्लियर किया, ऑल इंडिया रैंक 31 पाया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, छोटी अचीवमेंट नहीं है। लोग सालों साल प्रिपेयर करके भी ये रैंक नहीं पा पाते, और इस बच्ची ने बहुत जल्दी पाया। और कहते हैं दूध के पाँव पालने में मुझे सही होते हैं, तो वो है, वो शायद हम सबने उसको देखा। जो टीचर्स KVPY का मॉक इंटरव्यू देते हैं, उनको उसकी झलक, जब हमने KVPY का मॉक इंटरव्यू किया था तभी उसकी झलक दिखाई दे रही थी। जब सिविकरण से प्रश्न पूछे गए तो शायद जो हमारे टीचर्स हैं, जितना अच्छा जवाब उन्होंने उनसे अपेक्षा नहीं की होगी, उससे बेहतर जवाब दिया। बाकी में समय समय पर जब उससे कुछ प्रश्न किए गए तो उसकी जो वाजन जवाबी थी, रॉन्ग रिप्लाइज थे, वो शो करते हैं कि ये जो गलती जो है गलत है। और मैं बार बार इसको बता रहा हूँ कि जब लड़की जब ये फील्ड में आएगी, बढ़ेगी, तो ये एक बेहतरीन ऑफिसर बनेगी, उसके आसपास लोग नहीं होंगे। इसी तरह विधायक चमोनिया है, जो 2014 में जिसने पास आउट किया, दोस्तों का रहा, उसका भी जो है क्वालिफाई रैंक में 22 आया। फिर अभी 2-3 दिन पहले हमें 2015 की ही जो लड़की है बिल्कुल बघेल, उसके बारे में खबर मिली कि उसको जो है US के 1.5 करोड़ का पैकेज उसको मिला है, क्योंकि ये भी काफी बड़ी लड़की है। बच्चे इस मुश्किल की घड़ी में भी अपना रास्ता निकाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं। ये भी हमारे लिए प्रेरणा होते हैं कि घड़ी मुश्किल बेशक हो, पर इसमें भी हमें उजाला करना चाहिए। इसमें हमें देखना चाहिए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या अच्छा हमारे पास है। मेरी जो विनती है या मेरा संदेश यही है कि हमें जितने भी अपने आसपास हैं उनको बताना चाहिए कि ये मुश्किल की घड़ी है, इसमें आप देखिए क्या अच्छा आप कर सकते हैं, क्या अच्छा पा सकते हैं, क्या नई नई स्किल्स सीख सकते हैं।
किस तरह से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, और अगर हमारे चेहरे पर खुशी होगी तो ये अवश्य है कि हम बाकी लोगों में भी खुशी ही कराएंगे। मैं ये काफी समय रहा इसमें मैंने कभी भी जो है नेगेटिव नहीं सोचा, मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता रहा कि देखिए इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हम अपना काम कर पाएंगे। यही सोच लेके मैंने चलना है। हाँ, ये मौका ऐसा है इसमें जिनके कारण आज हम स्वतंत्र खड़े हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको नमन करें, उनका धन्यवाद करें, उन परिवारों का धन्यवाद करें जिनके कारण हम सुरक्षित हैं और हमेशा रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you, sir, for your words of wisdom. They stood tall and still with the power of Swaraj and their ideas. Everything they did was for country's best and country's sake. In our hearts, may their flame always burn bright. With these words, I would like to part with you all and wish you all a very happy Independence Day. Next, and at last but not the least, I would like to call Shivangi Goyal to propose the vote of thanks. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our souls. Good morning, everyone. It's my privilege to have been asked to propose the vote of thanks on the auspicious occasion of our 74th Independence Day. Today, I, Shivangi Goyal, would like to extend my sincere thanks to our Honorable Principal Sir, Mr. Prashant Vashisht, Senior Mistress Ma'am, Mrs. Maushmi Roy, and Head Mistress Ma'am, Mrs. Lipika Banerjee, for giving us the opportunity to conduct this program. Further, I would like to extend my heartfelt gratitude to all the teachers for their constant guidance and untiring efforts to make this program a success. Thank you one and all. Jai Hind.